Hello everyone, I am back with the fourth lecture of this chapter, that is we are not afraid to die if we can all be together. So far we saw that how the narrator went on a journey with his family in it, in a boat named Wave Walker, and along with his family he was stuck in the sea because the boat was struck by strong winds and the strong, very frightful waves, and they were unable to travel further because the boat was completely smashed. They were also hurt. How they managed to survive? They all are struggling. They are trying to pump the water from the boat continuously. His daughter is also hurt. His son is injured, and everybody is just praying for the lives. To save their lives. They are just trying to, the narrator is trying to save the lives of his family members. Sometimes he is giving up, he is quitting, but his daughter and his son reminds him that no, he has to struggle, he doesn't have to quit, he will have to make it through it. Okay, so he doesn't give up, and by the end of the last video we saw that how Susan went to his dad and he gives him a card, and there were caricatures. I told you, human cartoon, the cartoon images of the human is called the caricatures. She makes two caricatures in the card and tells him to laugh at it because she was trying to cheer him up because the situation was very serious, the condition was very crucial. They were not able to, they were holding hands together that it might be possible that they will not be able to make through the journey and they all might die. ऐसा हो सकता था कि ये एक संभावना थी कि वो लोग इस जर्नी से को कंप्लीट नहीं कर पाते। वो लोग 2 आइलैंड पे जाने की भी कोशिश करते हैं, उनका जो नियरेस्ट आइलैंड होता है। सो दे वर ट्राइंग टू रीच आइल एम्स्टरडैम, दैट वाज द नियरेस्ट आइलैंड टू देम, लेकिन the wind was so strong and the boat was not able to travel because the boat was unable to carry them because it was completely smashed, and the engine was also out of action and everything was falling out of hand. सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था और सारी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो गई थी, कुछ भी अपने जगह पे नहीं था, and everything he was just trying to put him together. वो अपना साहस रख रहे थे, कभी कभी उनकी हिम्मत टूट जाती थी, लेकिन सूजन आती है उनके पास एक कार्ड लेकर के जिसमें 2 ह्यूमन कैरिकेचर्स बने होते हैं, कार्टून फिगर होता है, और वो इनको देखकर अपने डैडी को वो देख करके कहती है कि क्या ये आपको इनको देख करके क्या आपको हंसी आ रही है। तो शी वॉज ट्राइंग टू चीयर हिम अप कि उनमें हिम्मत आए लड़ने का, और जैसा सिचुएशन है उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि कोई हो आपको हिम्मत दिलाने वाला। ऑलराइट, सो वी विल move further towards the chapter. Okay, the last phase of the chapter is I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वो नीचे चार्ट रूम रहता है, वहाँ पे जाते हैं अपने कैलकुलेशंस को देखने के लिए कि कितना टाइम लगेगा उनको उस आइलैंड तक पहुँचने के लिए, किस स्पीड से बोट को भगाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पूरा मैकेनिकल वो अपना थॉट्स लगाते हैं, पूरे कैलकुलेशंस को अपने अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बस वो उस आइलैंड तक पहुंच जाएं, क्योंकि बोट की स्थिति जैसी थी ही वॉज अफ्रेड कि हो सकता है वो लोग आइलैंड तक भी ना पहुंच पाएँ। तो ही वॉज कैलकुलेटिंग एवरीथिंग। तो वो वहाँ जाते हैं, वहाँ कंपास होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है सेक्सटेंट, और उससे डायरेक्शंस और एंगल्स को मेजर किया जाता है, डिस्टेंस एंड एंगल्स को मेजर किया जाता है, शिप में यूज़ किया जाता है वो। फिर चार्ट होता है, उनके पास मैप होता है, उन सारी चीज़ों को वो स्टडी करते हैं रूम में अच्छे से, और उसके बाद वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आई चेकड एंड रीचेक्ड, वो चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, फिर से रीचेक करते हैं अपने कैलकुलेशन को बार बार, कि कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि उनके पास समय नहीं था गलती करने का।
उनके पास एक ही शॉट था, क्योंकि बोट किसी तरीके से बस चल रहा था। बोट की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके, बोट खींच नहीं पा रहा था अपने आप को, क्योंकि उसका जो ऑक्सिलरी इंजन था वो आउट ऑफ एक्शन हो चुका था, सब तरफ से पानी घुस रहा था। ठीक है, तो ही वॉज कैलकुलेटिंग, ही वॉज चेकिंग हिज कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस, उनका मेन कंपस जो था वो भी गुम हो गया था कहीं पे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बिन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। उनके पास देखो, मैंने बताया था कि शिप और एरोप्लेन ये सब में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, रखा जाता है उनको ऐसे इमरजेंसी केसेस के लिए। तो उनके पास एक स्पेयर कंपस था, लेकिन वो बहुत दिनों से चेक नहीं किया गया था कि वो सही दिशा बता रहा है या नहीं, वो सिर्फ मैग्नेटिक वेरिएशंस बताता था। ओके, मतलब सिर्फ नॉर्थ की तरफ इशारा करता है कोई भी कंपस। तो एक सिंपल कंपस होता है, एक मेन कंपस होता है जिसमें और भी फीचर्स होते हैं, लेकिन इनके पास जो था वो सिर्फ मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड पे चलता था और नॉर्थ की तरफ इशारा करता था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं चलो काम चल जाएगा, इसी से काम चलाना है, अभी फ़िलहाल कुछ किया नहीं जा सकता है, तो जो है बस यही है। ओके, नाउ एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और इन्होंने अपना एस्टिमेट लगाया कि कितने जो वेस्टर्ली करंट था, यानी कि पश्चिम की तरफ से करंट्स आ रहे थे, यानी कि जो बहाव था वेव्स का, लहरों का जो बहाव था वो वेस्ट की तरफ से था। ठीक है, तो ये उनको और इनको जाना था ईस्ट की तरफ। तो इंडियन ओशन के ये लोग ईस्ट की तरफ ट्रैवल करने के लिए निकले थे। तो ये भी एक और समस्या इनके पास आ रही थी, क्योंकि ये लोग वेस्ट का जो वेस्टर्ली, यानी जैसे पूर्वैया हवा हम लोग कहते हैं ना, उसी तरीके से ये जो पश्चिम वाला जो हवा चल रहा था, उसके वजह से जो लहरें थी वो भी इनको पश्चिम की तरफ ढकेल रही थी, और लेकिन इन लोगों को जाना था ईस्ट की तरफ। तो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम देयर, ये भी एक समस्या आ रही थी। एट अबाउट 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। लेकिन फिर भी किसी तरीके से इन्होंने अपना कैलकुलेशन फिट किया, उसके हिसाब से ये 2 बजे एग्जैक्ट ऊपर चले गए डेक पे, जो छत होता है जहाँ से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था बना करके, कि जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है शिप का, जिस पे जहाँ से बाहर का पूरा शिप वगैरह, बाहर का सीनरी दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड डेक। फ्लोर जो होता है उसको फ्लोर को, शिप के फ्लोर को डेक कहते हैं। तो वहाँ पे वो जाते हैं और लैरी को कहते हैं कि अपने बोट को 185 डिग्री के एंगल में घुमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बोट्स होते हैं, जो शिप्स होते हैं, वो एंगल पे ही काम करते हैं। जैसे हम लोग स्टीयरिंग घुमाते हैं रोड पे, अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास रास्ता होता है, रास्ते पे हम लोग चलते हैं, लेकिन वहाँ पानी होता है, वहाँ कोई रास्ता नहीं बना होता है, ना ही एरोज़ होते हैं, ना ही कोई मार्किंग होती है। तो उन लोगों का बस जो भी कैलकुलेशन होता है वो एंगल और डायरेक्शन पे ही चलता है, और पूरा का पूरा बोट या शिप एंगल्स पे ही चलता है। तो इसीलिए वो लैरी अभी जो स्टीयरिंग संभाल रहे थे, तो वो लैरी को कहते हैं कि अपने बोट को 185 डिग्री के एंगल पे मोड़ने के लिए, स्टीयर करने के लिए, घुमाने के लिए। If I were lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 PM. उनको इतनी उम्मीद थी कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इतना आस्था, कन्विक्शन मीन्स आस्था, बिलीफ, उनके कन्विक्शन के हिसाब से, उनकी आस्था के हिसाब से, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से, उनको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उनको इतना बिलीफ था, उतनी आस्था थी, इतना उम्मीद था उनको कि ये लोग अगर इसी डायरेक्शन उन्होंने जो 185 डिग्री मुड़ने के लिए बोला, अगर ये सही है तो ये उम्मीद है कि वो लोग शाम 5 बजे तक, 5 PM तक ये लोग आइलैंड पे होंगे। ठीक है, ये अभी तक इतना कैलकुलेशन करने के बाद अंदाजे पे, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो इनको चाहिए थी वो है नहीं, इनके पास मेन कंपास नहीं है, तो बस ये अंदाजे पे इन्होंने बोला कि 180 डिग्री पे शिप को टर्न कर लो। और ये 185 डिग्री पे शिप को टर्न करने के बाद अगर ये निशाना सही लगता है तो जा कर के इनका शिप जो है वो आइलैंड पे 5 बजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये एक तुक्का है, ये अभी 100% श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ऑलराइट,
तो देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। इतना सब कुछ करने के बाद, अपना डायरेक्शन वगैरह बताने के बाद, अब ये थोड़े से डरे हुए हैं, ठीक है, कि क्या पता कि मैंने जो बताया वो किसी और मुसीबत में ना डाल दे इनको, इन लोगों को, इनकी फैमिली को, तो इसीलिए देख नहीं पाएंगे। इसीलिए ये क्या करते हैं, विद अ हैवी हार्ट, एक भारी दिल के साथ, इनका मन बहुत भारी है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ डेथ और लाइफ का सवाल है। एक सिचुएशन ऐसा, मौत और ज़िंदगी के बीच में अभी ये लोग हैं, 50-50 चांस है, क्या पता वहाँ पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, बोट साथ दे या नहीं, डायरेक्शन गलत हो जाए, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। और एक ये भारी मन के साथ ये बोलते हैं कि नहीं, अब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, अब कुछ भी सोचने को नहीं है, बस ये जाते हैं अपने बंक पे। बंक का मतलब होता है जैसे ट्रेन में सीट्स होती है ना, सोने वाली, स्लीपर्स जिसको कहते हैं, तो अपर बर्थ, लोअर बर्थ, वैसे ही उसको बंक भी बोला जाता है। तो वैसे ही वो शिप में अपने बंक में जा कर के डोज्ड ऑफ, मतलब सो जाते हैं, हल्की नींद। माय मदर एट 66 में भी मैंने आपको पढ़ाया था डोज्ड का मतलब क्या होता है। तो ये सारे जो कॉमन वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं। ओके, सो डोज्ड ऑफ मतलब हल्की सी नींद ले लेना। तो वो जाके सो जाते हैं कि नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं देखना है, जितना काम था अब इंतज़ार करने का समय है। अब ये जो 3 घंटे हैं 2 से 5 का, 2 बजे वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोलते हैं, 5 बजे तक इनको उम्मीद है कि ये लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो 3 घंटे का समय है ये बहुत क्रूशियल है, बहुत मतलब इंसान को उथल पुथल करके रख देने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे सपोज़ रिज़ल्ट आ रहा है तो नहीं 5 बजे रिज़ल्ट आएगा, तो वो जिस समय से आपको पता चला है कि हाँ 5 बजे रिज़ल्ट आएगा, तो वो उस टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, वो जो टाइम होता है, उस टाइम पे इतनी बेचैनी होता है, इतना सफोकेटिंग होता है, वो लगता है कि सांस नहीं आ रही है, सब कुछ दुनिया उथल पुथल हो गई है, सब कुछ बेचैनी, सफोकेशन होने लगता है। दैट इज़ वेरी टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, ठीक है। तो इनको भी वैसे ही लग रहा था, इसीलिए ये बोलते हैं कि नहीं मैं जाता हूँ सोने के लिए। वो सो जाते हैं। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब ये उठते हैं तो 6 बज चुके थे। इनको पहुँचना था 5 बजे, मतलब बोट शिप जो था वो अगर पहुँचता सही समय पे, सही डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये 5 बजे तक ये लोग आइलैंड पे पहुँच जाते, मोटा मोटी एक अंदाज़ा, एक एस्टिमेट के हिसाब से। लेकिन अब 6 बज चुके हैं जब ये इनकी नींद खुली है तो। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो चुका है। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और उनको इस बात का यकीन है कि उन्होंने आइलैंड को मिस कर दिया। मतलब वो आइलैंड से निकल गए, या तो आइलैंड पीछे रह गया, या तो आइलैंड ये गलत डायरेक्शन में चले गए और आइलैंड कहीं और है। And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. और इनको ये कहीं ना कहीं पहले से भी ये बात मालूम थी कि जिस स्पीड से ये लोग चल रहे थे, क्योंकि ये इन्होंने मेन जिब में भी नहीं गिराया था। याद करिए, इनका जो मेन जिब था वो उसको गिराने का रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि मेन जिब हवा का प्रेशर नहीं ले पाता और पूरा का पूरा बोट टूट जाता, उनका मास्ट टूट जाता, उनका हल टूट जाता। इसीलिए वो लोग स्टॉर्म जिब को, छोटे वाले जो उनका स्टॉर्म जिब था, तूफान में यूज़ करने वाला जिब था, उसको ही लेकर के चल रहे थे। उसी के सहारे ये लोग चल रहे थे, लेकिन उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जिस गति से ये लोग चल रहे थे, द स्पीड विथ व्हाट दे वो पेसिंग, वो उनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि शायद ये लोग दे विल नॉट रीच द आइलैंड ऑन टाइम, या आइलैंड तक ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात का उनको यकीन था। और अब इनको जा कर के इस बात का यकीन हो गया कि ये बात सच भी हो गया शायद, कि जो आइलैंड है वो पीछे निकल चुका है, या तो हम लोग जिस स्पीड से चल रहे थे आइलैंड को मिल पाना शायद मुमकिन नहीं भी था, क्योंकि जो वेस्टर्ली विंड्स था उसके साथ लड़ के चलना पड़ रहा था। आपको ईस्ट की तरफ जाना है, हवा उधर से आ रही है, एक तो आपके बोट में प्रेशर नहीं है, स्पीड नहीं है, इंजन आउट ऑफ एक्शन है, बस किसी तरीके से उस हवा के बहाव से ही चल रहा है शिप। और अभी क्या हो रहा है कि आपको अपोज कर रहा है वो हवा, तो आपको उसको चीरते हुए आगे जाना है। तो वो बोट को और क्या कर देगा, स्लो कर देगा, है ना। तो वो स्लो होने की वजह से ये जान रहे थे कि बोट को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसकी उम्मीद ऐसे भी बहुत कम थी कि ये लोग वहाँ तक टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए ये जा कर के सो जाते हैं, क्योंकि चांसेस मैंने बोला 50-50 का था। लेकिन
वी couldn't hope to beat back into the westerly wind, और इन्होंने मान लिया कि हम वैसे भी उम्मीद नहीं कर सकते थे, जिस स्थिति में हम लोग चल रहे थे हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि बोट आगे तक जाएगी या बोट समय पे वहाँ पहुँच पाएगी, तो ये निराश हो जाते हैं। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण उसी समय, अ टाउल्सेड हेड appeared on by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. और एक टाउल्सेड हेड मतलब सूजा हुआ सर और जॉनथन दोनों आते हैं वहाँ पे, और वो बच्चा उनसे बोलता है क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? कैन आई हैव अ हग? ऐसा क्या हुआ? जॉनथन आज जॉनथन पूछता है, एंड सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू जस्ट उनके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। नैरेटर पूछते हैं कि क्यों, क्या बात है, तुम्हें मुझे गले क्यों लगाना है, ऐसा क्या हो गया? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। उनका छोटा सा बेटा जॉनथन कहता है क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो, आप दुनिया में सबसे अच्छे और दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। जो बोट चलाता है, जो शिप चलाता है, शिप का जो अथॉरिटी जिसके पास होता है, कैप्टन, ठीक है, मालिक नहीं, अथॉरिटी मीन्स वहाँ कैप्टन, एक टीम का कैप्टन जैसे होता है वैसे शिप का भी कैप्टन होता है, वो पोस्ट होता है। तो वो कहता है आप बेस्ट कैप्टन भी हो, सिर्फ वर्ल्ड के बेस्ट डैडी नहीं, बेस्ट कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वो बोलते हैं आज नहीं बेटा, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि वो नहीं पहुँचे हैं, आइलैंड नहीं आया है, आइलैंड को उन्होंने मिस कर दिया, और उनको अभी भी ये लग रहा है कि वो लोग नहीं बचेंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब उनकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो लोग अब नहीं रहेंगे। तो वो बोलते हैं कि आज नहीं बेटा, आज मैं एक अच्छा पिता भी नहीं हूँ और आज मैं एक अच्छा कैप्टन भी नहीं हूँ, क्योंकि वो फेल हो गए उनके हिसाब से। वाई यू मस्ट बी, एंड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। सू बोलती है क्यों नहीं पापा, क्यों नहीं डैडी, आप आज ही तो, आज क्यों नहीं, आज तो हमने आइलैंड को आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है, तो आज क्यों नहीं आप बेस्ट डैडी हो। इसीलिए तो वो लोग उसको प्रेज़ करने के लिए आए थे कि वो लोग आइलैंड को, उनको आइलैंड मिल जाता है, वो लोग समय पे आइलैंड पहुंच जाते हैं, इस वजह से उनकी बेटी बहुत खुश है, उनका बेटा बहुत खुश है, वो लोग उसको थैंक यू बोलने आए हैं, इसीलिए उनको गले लगाने के लिए आए हैं अपने पिता को, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब ये सच्चाई है, ये हकीकत थी कि उन्होंने आइलैंड को खोज दिखाया। उनके ही कैलकुलेशन की वजह से वो अगर 185 डिग्री नहीं मोड़ने को बोलते लैरी को बोट, तो शायद वो लोग आइलैंड तक नहीं पहुंच पाते, और उनके कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल वो लोग आइलैंड पे पहुंच चुके थे। तो ये एक मिरेकल जैसा था, ये एक चमत्कार जैसा था, इसीलिए वो लोग बोलते हैं, वो दोनों बच्चे अपने पिता को गले लगाने के लिए आए हैं, उनको मे बी थैंक यू बोल रहे हैं। उनका थैंक यू बोलने का तरीका है वो कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो और आपने हमारी जान बचाई है, आपने ये कर दिखाया, यू मेड इट, ठीक है। वॉट, आई शाउटेड, वो शॉक्ड, बिल्कुल ही अचंभित हैं, और वो चिल्ला के पूछते क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने हैं। दे कोरस, दोनों बच्चे साथ में, कोरस मतलब साथ में बोलना, दोनों बच्चे साथ में बोलते, वो तो हमारे सामने आइलैंड दिख रहा है। वो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर टाइम था, दैट वाज क्लोज टू अ मिरेकल, ये चमत्कार से कम नहीं था। वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि उनको आइलैंड मिल गया, और एक ऐसा चमत्कार हुआ है कि जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बच गई, ठीक है। आइलैंड एक बहुत बड़ा होप था उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर उसी तरीके से वो लोग चलते रहते, शिप पे चलते रहते, तो शिप ज़्यादा देर उनका साथ नहीं देता और शिप शायद डूब जाता, टूट जाता, या और भी बुरा हाल हो जाता, या शायद तूफ़ान फिर से वापस आ जाता, वो हवाएं फिर से आती और वो करंट्स फिर से वापस आता, और कुछ भी हो सकता था, या सू की कंडीशन और ख़राब हो जाती है ना। तो वो कहते हैं इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटल शिप। उनके बच्चे कहते हैं कि देखो जो सामने, वो एक बैटल शिप के जैसा दिखाई दे रहा था। बैटल शिप का मतलब होता है जहाँ पे युद्ध किया जाता है, तो वो बहुत ही बड़ा आइलैंड होगा, तो और पूरा खाली, पूरा मैदान, वो लग रहा था कि वो लोग कोई जंग जीते हैं, इसीलिए उसको बैटल शिप बोला गया है। जैसे कहीं पे आप कहीं से जंग लड़ करके जब बैटल जो जगह होता है, जो लैंड होता है, जो युद्ध भूमि होती है, उसका जैसा नज़ारा होता है, वहाँ का नज़ारा भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था। उन लोगों को ऐसा
लाइव फील हो रहा था, उन लोगों को ऐसा ट्रायम्फ विक्ट्री फील हो रही थी, ऐसा जीत का वाला फीलिंग आ रहा था उन लोगों के मन में। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam। और वो दौड़ करके छत पे जाते हैं, डेक पे जाते हैं और वहाँ से गेज्ड मतलब बहुत ध्यान से सब कुछ एकदम घूरते हुए, गेज का मतलब होता है घूरना, एक टक से किसी चीज़ को देखना एक नज़र से, तो ही गेज्ड, वो चारों तरफ विथ रिलीफ, राहत के साथ वो पूरे आइल एम्स्टर्डम को बहुत अच्छे से देखते हैं, उनकी नज़र चारों तरफ घूम रही है क्योंकि वो एक राहत है, वो उनके लिए समझो वो लैंड नहीं था, वो उनके लिए जन्नत था, ऐसा लग रहा था उन लोगों को जन्नत का रास्ता मिल गया हो। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world। मतलब जबकि वो आइलैंड कुछ नहीं था, सिर्फ एक वॉल्केनिक पीस ऑफ रॉक था। बहुत सारे ऐसे पहाड़ वहाड़ होते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो एक वॉल्केनो की वजह से वो वॉल्केनो जब ठंडा होता है तो उसकी वजह से पथरीला बन जाता है, तो वो भी आइल एम्स्टर्डम बिल्कुल वैसा ही था। बहुत लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वहाँ पे हरियाली थी, कुछ भी दिखाई वैसा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वो जगह उनके लिए दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था उस समय वो उनके लिए दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। रात को वो लोग 6 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे, तो रात को उन्होंने क्या किया, एंकर गिराने से बोट रुक जाता है, शिप रुक जाता है क्योंकि वो भारी होता है, वो बोट को फिर आगे नहीं बढ़ने देता है, तो वो लोग एंकर गिराए। वी एंकर्ड ऑफ शोर, जब शोर आ गया, ज़मीन आ गई थी, तो वो लोग एंकर को गिराते हैं और अगले दिन वहाँ पे 28 इनहैबिटेंट्स थे। इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, वहाँ के रहने वाले लोग जो उस आइलैंड पे रह रहे थे उनको इनहैबिटेंट कहते हैं। जैसे यहाँ के इनहैबिटेंट हम लोग हुए, और ये वहाँ के इनहैबिटेंट निवासी, वहाँ 28 इनहैबिटेंट्स थे जो लोग उनको चीयर करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए आए, क्योंकि वो लोग देखा जाए तो एक जंग जीत करके आए थे। ठीक है, अगली सुबह और सब लोग आते हैं, उन लोग को हेल्प करते हैं शोर पे, किनारे पे अपने सारे सामान उतारने में या सेटल होने में, जो भी करना था उन सारी चीज़ों में उनको वहाँ के इनहैबिटेंट्स, वहाँ के जो निवासी हैं वो उनको हेल्प करते हैं। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for those crucial hours। अब जब ज़मीन के नीचे पैर थी इतने दिनों पैर के नीचे जब ज़मीन थी इतने दिनों के बाद, उनके फीट ने लैंड को टच किया था इतने दिनों के बाद, ठीक है, इतने दिनों के स्ट्रगल के बाद, तो वो एक ऐसा मोमेंट था ना कि उनको सब याद आ रहा था, सब फ्लैशबैक, कि किस तरीके से उनके बच्चों ने इतना करेज रखा, इतनी हिम्मत रखी, किस तरीके से लैरी और हर्ब जो दोनों वो थे, उनके जो क्रू मेंबर थे, वो कैसे एकदम ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव होप, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला, जो हमेशा आशावादी, हमेशा अच्छा सोचता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो वो लोग हिम्मत नहीं हारे थे। लैरी और हर्बी जो थे वो लोग हमेशा से पूरे टाइम वाटर को पागलों की तरह पंप करते रहे, पूरी तरीके से अपना जान लगा दिया कि नहीं, हम लोग को यहाँ से निकल करके जाना है, हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनके डायलॉग्स हैं, उनके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन वो लोग हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक थे, सारा काम कर रहे थे। कुछ अगर दूसरा जन होता तो थक हार के बैठ जाता कि नहीं अब क्या, कोई उम्मीद ही नहीं, हम लोग बैठ जाते, काम ही छोड़ देते। लेकिन इन्होंने एंड तक, जब तक ये लोग आइलैंड पे नहीं पहुँचे तब तक ये लोग सारा काम कर रहे थे। तो ये लोग पूरे के पूरे हिम्मत रखी हुई थी इन्होंने पूरी तरीके से। और under the direct stress and of Mary who stayed at the wheel, मैरी उतने स्ट्रेस में भी कि उनके बच्चों को चोट लगी है, उनके बच्चे पता नहीं बचेंगे नहीं, उनका पूरा फैमिली ख़त्म हो जाएगा, इतने स्ट्रेस के बाद भी मैरी ने अब हिम्मत रखी हुई थी। वो पूरे टाइम व्हील को संभालती रही, पूरे टाइम स्टीयरिंग को संभालती रही। तो ये वहाँ पे पहुँचना सिर्फ एक जन का स्ट्रगल नहीं था, वो पूरे लोग जितने भी बोट पे थे, जितने भी शिप पे थे, वो सब ने अपनी जान लगा दी थी। हर कोई वहाँ पे अपने अपने हिसाब से उन्होंने सारा काम किया था। उन्होंने
हर एक वो चीज़ की थी जो वहाँ पे वो लोग मुमकिन था वो कर सकते थे अपनी जान बचाने के लिए या वहाँ ज़िंदा रहने के लिए। I thought of a 7-year-old girl, अब उस छोटी सी 7 साल की बच्ची को ही ले लो, who did not want to worry about a head injury, जो नहीं चाहती थी कि उनके जो पिता हैं, उनके जो मम्मी हैं, जो नैरेटर थे, वो उसके हेड इंजरी के बारे में चिंता करें, क्योंकि वो अगर उसको उस बात की चिंता करने को बैठते तो बाकी सारे काम नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी बात थी कि उतनी छोटी सी बच्ची इस चीज़ को सोच रही थी कि नहीं, हम लोगों को अभी मैं अपने इंजरी के बारे में अगर बताऊंगी उनको तो वो परेशान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, तो उसका इतना सोचना ही बहुत बड़ी बात था। जो कि विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो कि एक्चुअली में बाद में जब वो लोग वहाँ से उतर गए होंगे, जब अपने घर चले गए होंगे, तब जा कर के वो इंजरी कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं थी, उस इंजरी को छोटे छोटे 6 ऑपरेशन लगे थे, क्योंकि वो ब्लड बहुत ज़्यादा क्लॉट हो गया था और वो स्कल और स्किन के बीच में क्लॉटिंग हो गई थी। जब ब्लड जम जाता है तो उसको क्लॉट होना कहते हैं, गांठ बन जाता है, तो वैसा उसके हेड और स्किन और स्कल के बीच में वैसा वो गांठ बन गया था, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा सीवियर था और उसको हटाने के लिए 6 माइनर ऑपरेशंस लगे थे। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, उसको उतने दर्द को भी वो बर्दाश्त कर रही थी बिना कुछ बोले। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और वो 6 साल का बच्चा जिसने ये डायलॉग बोला था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई व्हेन इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और वो छोटा सा बच्चा इतनी हिम्मत रखता है 6 साल का, और वो इतनी बड़ी बात बोलता है कि हम लोग को क्यों मरने से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब साथ हैं। अगर हम लोग साथ हैं तो हम लोग को मरने से डर नहीं लगना चाहिए। तो ये हिम्मत देना हुआ, ये किसी को साहस देना हुआ कि इतने मुश्किल समय में भी अगर कोई बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है बिना घबराए, बिना डरे, और अपने माँ बाप को हिम्मत दे रहा है, जबकि माँ बाप को बच्चों को हिम्मत देना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड दिस वाज अ वेरी यू कैन से इंस्पायरिंग चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाला चैप्टर था कि हाउ अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन कैन इंस्पायर यू एंड यू शुड नॉट गिव अप ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। इफ़ यू आर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दैट, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो तो यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। एंड इन स्पाइट ऑफ पैनिक ना करना, घबराना और ये सारी चीज़ें ना करके हम लोग को, ये सारी चीज़ें हम लोग को और कमज़ोर करता है। तो ऐसा ना करके वी मस्ट फाइट। ये बाद में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि नहीं, मैंने 100% जान लगा करके हिम्मत नहीं दिखाई या मैंने लड़ा नहीं अपने जान के लिए, ये नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट, यही था हमारे चैप्टर कि किस तरीके से हम लोगों को करेज रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थीम्स ऑफ द चैप्टर। ऐसे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। सो फर्स्ट वन इज़ एडवेंचर। हाउ कैन यू से दैट द चैप्टर हैज़ एडवेंचर? तो यू कैन से कि हाँ, द चैप्टर वॉज एडवेंचरस, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था, बिकॉज the first journey, the first round the world journey was the voyage was completed by 400 years ago by James Cook, है ना। सबसे पहले राउंड द वर्ल्ड जर्नी किसने कंप्लीट की थी? जेम्स कुक ने कंप्लीट की थी। सो व्हेन ही completed this adventure, it inspired Gordon Cook and he went on a journey with his whole family. He completed his journey. He practiced before several times in his leisure time. जब उसको खाली समय मिलता था, he used to practice at that moment. He always used to he took his boat with his wife and practice all the sea. He used to sharpen all his skills, seafaring skills. वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, honing seafaring skills during our leisure time. तो वो अपने खाली समय में he used to sharpen those skills. उनका जो कला था, उनका जो हुनर था, उसको वो शार्प करते थे, मतलब उसको और प्रैक्टिस करके वो कि कोई भूल ना हो, कोई चूक ना, कोई कमी ना रह जाए। तो दिस वॉज वेरी एडवेंचरस एंड when he went on this trip, that trip was also very adventurous
because it was a real life experience and they were caught in such a life and death situation. The storm, they were caught by the storm, there were strong winds, there were life threatening waves and everything. So all these things made this chapter adventurous. Second point is courage or bravery. सबसे पहले तो bravery, because it takes a lot of courage, it takes a lot of braveness that you are taking your whole family on a trip, and that too on the in the Indian Ocean. Okay, it takes a lot of courage कि आप अपने पूरे family के साथ Indian Ocean में, so a normal person cannot do that, and that too alone. Okay, वो एक पूरे बोट में या शिप में हज़ारों लोगों के साथ जाना वो एक अलग बात होती है, बट दैट टू कंप्लीट अ राउंड द वर्ल्ड जर्नी अलोन विथ योर फैमिली, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए. सो दैट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेवनेस एंड करेज. सेकेंड थिंग, when they were caught in the storm, जब वो लोग स्टॉर्म में फंस गए थे, तो each and every person, each and every character of this chapter, जितने भी कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में, मैरी, गॉर्डन कुक, जॉन, जोनाथन, सू, लैरी, हर्ब, all of them have shown courage. All of them, they were so brave to fight till they reached the island. तब तक, जब तक वो लोग आइलैंड नहीं पहुँचे, they were, all of them have showed the signs of courageousness and showed the sign of courage and braveness. Okay, bravery. Now the next one is how to face difficult situation. Difficult situation. So whenever this chapter obviously teaches us that whenever we face a difficult situation, we should not give up, we should not be disheartened और कि अब क्या होगा. We should not panic, we should try to calculate all the possible things, all the possible solutions of that, and try to come up with a solution and try to reach to the conclusion that, so that we can face the difficult situation with braveness, with bravery. Okay, ये सारे situations को, जो भी हमारे लाइफ में भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं डिज़ास्टर और पानी में कूदना या समंदर में जाने की बात कर रही हूँ. आई एम टेलिंग कि इन एवरी डे लाइफ ऑल्सो वी फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन. सो दिस चैप्टर टेल्स यू हाउ टू फेस दिस सिचुएशन, हाउ टू फाइट अगेंस्ट इट, एंड हाउ टू स्टैंड ब्रेव एंड हाउ टू स्टैंड फर्म. ओके, नेक्स्ट वन इज डोंट गिव अप. In this chapter you have seen that two small kids, a 6-year-old and a 7-year-old girl, a 6-year-old boy and a 7-year-old girl has taught us how not to give up. कि कैसे हम लोग को गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मान लेना चाहिए. They have taught us that both the kids, they were in a situation that his mother was not with them, their mother was not with them, their father was not with them, they were underwater, water was everywhere, their whole ship was sinking, and they were seeing it through their eyes, it was in front of them. Still they have faced all the situations with so much bravery, and they were also teaching others. वो लोग दूसरों को भी ये सिखा रहे थे किस तरीके से कि अपने माँ बाप को उन्होंने ये हिम्मत दी, उन्होंने ये सिखाया छोटे छोटे एक्शन से. अपने कभी कार्ड बना के ले जा रहे हैं, कभी कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जिससे उनको हिम्मत मिल जा रही है और उनमें साहस आ जा रहा है कि नहीं, अब तो करके दिखाना, अब तो यहाँ से निकलना है, गिव अप नहीं करना है. तो ये डू नॉट गिव अप वो हम दो बच्चों ने हम लोगों को बहुत अच्छे से इस चैप्टर में सिखाया है. And the last one is togetherness. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये पूरा चैप्टर वही सिखाता है, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग सब साथ हों तो. सी व्हाट हैपन्स, इंसान सबसे ज़्यादा हिम्मत तब हारता है जब वो अकेला होता है. डिफ़िकल्ट सिचुएशन हर दिन हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन इंसान हार तब जाता है जब वो अकेला होता है.
That is the time that we should teach ourselves and we should teach others that we should stick together. ऐसा नहीं है कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो साथ छोड़ देना है किसी का, नो, एट दैट मोमेंट देखो यहाँ पे जो फैमिली थी या गॉर्डन कुक चाहते तो वो हिम्मत हार जाते, या उनका हिम्मत कहीं ना कहीं छूट भी रहा था। जब मैरी और वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के बैठे थे तो दोनों के दिमाग में ये कहीं ना कहीं चल रहा था कि ये शायद उनका आखिरी मोमेंट है, इसके बाद वो लोग इस तरीके से बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग कल नहीं रहेंगे, इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। तो लोग हिम्मत ऑलमोस्ट हार चुके थे, लेकिन वो लोग जब साथ थे तो उनके बच्चों को देख करके उनको वो हिम्मत आई कि नहीं, मुझे लड़ना होगा, किसी भी सिचुएशन में मुझे यहाँ से निकलना होगा, ठीक है। और उनकी वाइफ वो भी पूरे टाइम व्हील को संभाल रही है, तो किसी ने गिव अप नहीं किया, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग वहाँ साथ में थे। अगर वो उस शिप में अकेला इंसान होता तो हमने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज सुनी है कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वहाँ पे अकेला था तो ही गिव अप, या वो नहीं लड़ पाया, वो नहीं आगे बढ़ पाया, या उसमें हिम्मत नहीं रख पाया। तो ये सारी सिचुएशंस हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन इन दिस चैप्टर दे वर टुगेदर, सो दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई फर्स्ट। सबसे पहले तो वो लोग मरने से नहीं डर रहे थे, एंड द सेकेंड वे दे डिडंट डाई, वो लोग नहीं, हिम्मत नहीं हारे, वो मरे नहीं, वो दे मेड इट आउट, वो पूरा कर पाएँ। वो उनका जो गोल था टू रीच आइल एम्स्टरडैम, दे रीच देयर। एक्चुअली उनका फर्स्ट गोल तो अराउंड द वर्ल्ड जर्नी को ये करना था, लेकिन वो एडवेंचर था कि वो लोग राउंड द वर्ल्ड जर्नी को पूरा करें, वो उनका एडवेंचरस ट्रिप था, वो लोग निकले उसके लिए था। लेकिन जब लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आए तो वो लोग देखा जाए तो मौत से लड़े, और वो लोग वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बचाया। तो किस तरीके से टुगेदरनेस, एक साथ रहने से कितनी हिम्मत आती है, एक दूसरे के लिए लोग लड़ने लगते हैं कि नहीं उसको बचाना है, मेरे बच्चों का भी। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, गॉर्डन कुक और मैरी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरे बच्चों ने अभी देखा ही क्या है, वो इतनी जल्दी उनका ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता है। और ये भी उनको हिम्मत, यहाँ से भी उनको हिम्मत आई होगी कि हाँ मुझे लड़ना है, अपने बच्चों को यहाँ से निकालना है, इस सिचुएशन में मेरे बच्चे आज मेरी वजह से हैं, क्योंकि मैं आया था, हम दोनों आए थे इस ट्रिप पे, ना हम लोग यहाँ होते, ना मेरे बच्चे यहाँ फंसते, है ना। तो these sort of things that must have come in his mind, and he decided not to give up, and because they were together, ये पूरे जितना भी हिम्मत, जितना भी courage उनमें आया, जितना भी determination उनमें आया, that was because they were together. This was because of the togetherness. So these are all the main themes of the chapter that we find out as we read the chapter, as we studied the chapter. And this is a very interesting chapter. I personally find this chapter very inspiring, and I hope you understood it well. Thank you.